Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the another new lecture of manufacturing technology. Right. So, in the previous series of the lecture, we start the another new chapter, which is the forming and the shaping processes. Right. In the last previous series of the lecture, we are discussing about the various basic understandings about the forming processes and what the basic things, what is the meaning of the strain hardening, what is the elastic and plastic deformations, how the metal, what is the process which is happens behind the metal is taking the shape, different shapes, with applying the load, with the help of the punch and dies, right? So in the previous series of the lecture we are discussing the basic few things or basic mechanism behind the forming and the shaping processes. So in the today's series of the lecture we try to discuss about the various things about the different forming process. We start the discussions with the rolling process. So I think you all are aware with the word of the rolling process, right? What is happening between the rolling process which is required to convert or to decrease the thickness of the plates. The rolling process, which will proceeds with the help of the two conditions, which is the hot rolling process and the cold rolling process, as we discussed in the last previous series of the lecture. So when the plate which is passed through the two hard rollers, right? So there is a certain kind of the processes at the crystal levels are also happens during the rolling process. So the one process which is rotating, the one roller which is rotating in the clockwise directions, while the another roller which is rotating in the anti-clockwise directions. When the plate which is passing through them, its crystallographic change is also happens at the time of the decreasing the thickness, which is called as a the it's the grains of that metals which is previously at the coarse grain which is converted into the fine grains, right? So which basic things which we will also discuss during the last, what is the hot rolling and the cold rolling process, right? So the same thing which is happens with the rolling process, with the rolling process. So we start the further discussions with the another basic understanding. So this is the introductions and the definitions of the rolling process. Suppose we have to define the rolling process, the process of plastically deforming the metals by passing it between the rollers. So rolling is the most widely used forming process which is providing very high productions and the close control of the fine product. So here you can see in the schematographic figure, you can see the different kind of the rolling, different kind of the rolling arrangement. You can see here the your billet or your plate is passing through the different certain configurations which is set previously to convert or to form the desired shapes of the plate. The metal is subjected to the high compressive stresses uh, as a result of the frictions between the rollers and the metal surface. The rolling process can be mainly divided into the two categories, which is the hot rolling process and the cold rolling process. The Herely we can convert uh, as a rolling process. We are converting the there is a before we take this process in the more configurations, we have to understand about the basic three terminology which is used in the rolling process, which is the bloom, billet and the slab, because these are the basic type of the raw metal product, right, which is converted into the different shapes. So what is a bloom? This is the product of the first breakdown of the ingots, right? What is a billet? So it is a product which is obtained from the further reductions from the bloom by the hot rolling process, and which is converted into the area of the 40 into 40 mm cube. Then the slab, which is the further reductions of the
area of the billet, and which is called as a 100 centimeter into the 100 centimeters, and which is the width which is less than the 2 into the thickness. So the another terminology or the terms which is used in the rolling process, which is the plate, sheets and strips, the which has the thickness which is less than 6, which is designated as a plate, uh, which is more than 6, which is designated as a plate, which is less than 6, which is designated as a sheet, and the strips, which is this is the product with the thickness which is less than 6 and the width which is the less than 600 mm. So there is the two types of the basic rolling process, which is the hot rolling process and the cold rolling process. The breakdown of the ingots into the blooms and billets is generally done by the hot rolling process, and this is formed by the further hot rolling into the plate, sheets, rod, bar, pipe, etc. In the cold rolling process of the metal has played a major role in the industries by providing the sheet, strips, foil with the good surface finish, and increase the mechanical strength with the close control of the product dimensions. So these are the typical arrangement of the rollers of the rolling mills, and based of that the rolling pass sequence which is the design. So here in the first process you can see that the two rollers we can show the two rollers, and both rollers are rotating in the opposite directions, and the roller which is passing from the one directions to the another directions, which is a too high rolling mill, which is the pull over. We can pull the plate, right? Then the second, which is the too high rolling mill, which is the reversible mill. We can enter the plate from the one directions, and from the same directions we enter when it is passed through when it is totally passed through, and we recover that, and we can repeatedly enter or reversing that plate from the same directions. So the another third figure, which is the three high rolling mill. So here we can see that uh, we can show that the three different rollers, and the first roller which is rotating of the first and second roller which is rotating in the different directions, while the third rolling which is totally different than the rotating directions of the that kind of the roller. When the plate which is passing from the right hand side directions, and once it's decrease in the thickness which is passing the distance between the roller number 2 and 3, which is quite lower, and we passed from that second and third roller of that conditions. Then the four eye rolling mills, the two roller which has a bigger in the diameters, and the two rollers which is smaller in the diameters. So when the actually the two small roller which is playing the accurate role to convert the different shape of that plate, while the bigger roll is just kind of the supporting rollers. Then the last, which is the cluster of the rolling mill. Here we can see that there is some kind of the cluster or the group of the rollers are shown, and which is work like as a gear mechanism. The one roller is uh, uh, actually acting as a rolling roller, while the others are, which is a supporting roller, which is a creating or which is helping the main roller in the uh, fame of the they are supporting in the decreasing the compressive loads. So then the planetary roller will, which has a some kind of the bearing like of the actions uh, in which the planetary will mill has a different small rollers on the big roller, and we can pass over the plate, we can pass the plate between the them. So there are the different types of the rolling processes.
there is a continuous rolling process. Here we can see that the name of the different rolling processes, there is a continuous rolling process, transverse rolling process, shape rolling and the sectioning process, ring rolling process, powder rolling process, continuous casting and rolling process, and the thread rolling process. But as per the syllabus of our GTUs, there is a basic process we are required, which is the hot rolling process and the cold rolling process. And from the different types of the rolling process, we just need the continuous rolling process, right? Others are for your better understanding for the future's scope. So we start with the conventional hot and cold rolling process. The objective of the rolling process, which is to decrease the thickness of the metals with an increasing in the length and with little increase in the width. So here you can see that the different kinds of the rolling arrangements we can see that here. So the material in the center of the sheet is constraints in the z directions across the width of the sheets, and the constraints of the undeformed shoulders of the materials on each side of the roller to prevent the extension of the sheets in the width direction. The condition which is shown as a plane strain, the material therefore it gets as a longer and no wider. Otherwise we would needs the width of the football pitch to roll down a steel ingot to make the tin plates. So this is the continuous rolling process. The basic objective of this process is to decrease the thickness and there is a little increase in the width. ज़्यादा जो है वो विड्थ में डिफॉर्मेशंस होना नहीं चाहिए, जो कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि उसकी थिकनेस जो है उस रोलर के पास उस रोलर के डिस्टेंस में से उसको पास होके उसका जो थिकनेस है वो हमें किसी ना किसी तरीके के कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करके वो हमें कम करना है। और उसका जो रोटेशन डायरेक्शंस होता है वो जो है डिफरेंट रोटेटिंग डायरेक्शंस होता है, यानी ऊपर वाले जो टॉप रोलर्स है विच इज़ रोटेटिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस वाइल दी लोअर रोलर्स आर रोटेट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, राइट? शो द नेक्स्ट विच इज़ द शेप रोलिंग प्रोसेस एंड द सेक्शन रोलिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो दो रोलर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यानी कि रोलर्स के जो बीच जो अरेंजमेंट्स होती है ना, जो शेप्स होता है वो इस तरीके से, यानी ये पर्टिकुलर एक सर्कुलर रोलर्स नहीं होता है, यानी इस दो रोलर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर जो है वो रोटेट होता है, पर उसके रोलर के ऊपर जो शेप होता है वो वही शेप होता है जो हमें अचीव करना होता है। यानी प्लेट हो सकता है, बिलेट हो सकता है, स्लैब्स हो सकता है, यानी एल सेक्शन होता है, सी सेक्शन हो सकता है, यानी इस तरीके के जो है एंगल वगैरह जो शेप्स है वो इस रोलिंग डायरेक्शंस इस तरीके से जो शेप हमें चाहिए एक्चुअली बिलेट के ऊपर, वही शेप जो है वो रोलर के ऊपर पहले एम्बोस किया होता है। जब वो पास करेगा तो उसको वही शेप के अंदर जो है उसको फॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी इस प्रोसेस को जो है वो शेप रोलिंग यानी सेक्शनिंग प्रोसेस बोलते हैं। देन द सीमलेस रिंग रोलिंग प्रोसेस, यहाँ पे जो है वो एक तरीके से एक सपोज हमें रिंग बनाना है तो रिंग जो है वो सीमलेस यानी इसके ऊपर जो है वो किसी तरीके का जो है वो जॉइंट नहीं दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से एक राउंड टेबल रोटेशन के ऊपर सारे रोलर्स जो है वो रोटेट होते हैं और इसकी थोड़े डिस्टेंस अंदर इनसाइड डायमीटर के अंदर और एक रोलिंग अरेंजमेंट होती है। अब जब एक रिंग जो है उसके ऊपर से उसके बीच में से जो पास होती है तो एक जो है वो उसका डायमीटर जो है वो हम लोग एडजस्ट करते जाते हैं। तो जितना डायमीटर हमें इंटरनल डायमीटर चाहिए उतना डायमीटर तक जो है वो उसको एडजस्ट करके वहाँ पे एक सिमलेस रिंग जो है वो हमें फॉर्म करना है। बट ये जो प्रोसेस है वो पूरी हॉट रोलिंग कंडीशंस के अंदर की जाती है। नेक्स्ट विच इज़ द पाउडर रोलिंग प्रोसेस। अब पाउडर रोलिंग प्रोसेस जो है वो आप अगर यानी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था इसके प्रीवियसली जो है आपने मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी पढ़ा था, उस
उसके अंदर एक चैप्टर आता था आपका पाउडर मेटलर्जी, एक चैप्टर था एमएसएम के अंदर, उसमें जो है वो पाउडर प्रोसेसिंग करते थे। तो पाउडर प्रोसेसिंग के जैसे मैं आपको यही चीज़ एक बताऊँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक रोलिंग प्रोसेस, यानी रोल जो है वो ऐसा एक प्ले करेगा कि वो जो है वो आपके मेटल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। अब ये जैसे अपने आटे की जो चक्की होती है वो जैसे काम करती है, जो दो रोलर के बीच जो है वो गेहूँ जैसे पीस कर जो है वो एक तरीके से व्हीट फॉर्म जो है वो डेवलप करते, इसीलिए जो इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है वो मेटल के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे उसके अंदर रोलर के बीच पास करके यहाँ पे जो है वो एक तरीके से मेटल पाउडर को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। वो एक तरीके से रोलिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म है वो दो रोलर के बीच मेटल को प्रोसेस करके ही पाउडर फॉर्म करना है, इसलिए इस प्रोसेस को पाउडर रोलिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट विच इज़ द थ्रेड रोलिंग प्रोसेस। अब थ्रेड रोलिंग प्रोसेस जो है वो इस तरीके से प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पे जो रोलर होता है वो रोलर जो है उसके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल थ्रेड्स फॉर्म किए होते हैं। अब उस एक्सटर्नल थ्रेड्स के जो थ्रेड्स है वो क्या करेंगे कि आपको रोलर के ऊपर जो थ्रेड्स जो है वो फॉर्म्स करने हैं, राइट, वो थ्रेडिंग जो है वो इंटरनल थ्रेडिंग्स हो गए, यानी जिस टाइप का थ्रेडिंग जो है वो रोलर के ऊपर फॉर्म हुआ है उसी टाइप का वहाँ पे एंटिटीज़ जो है वो आपके जो है वो, या फिर ये रिवर्स कंडीशन में भी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि आपके दो रोलर्स है उसके ऊपर थ्रेडिंग प्रोसेस किया गया है, राइट, वो रोलर्स जो है वो थ्रेडेड रोलर्स है। अब उसके बीच जो है वो आप एक बिलेट या फिर बार जो आप पास करेंगे जिसके ऊपर आपको थ्रेडिंग करना है, तो वो जैसे ही वो पास होगी, एक जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जैसे ही थ्रेडिंग प्रोसेस जो जैसे थ्रेड जो है वो आपको रोलर के ऊपर दिख रहा है उसी तरीके के थ्रेडिंग जो है वो आपको जो है वो बार के ऊपर ऑब्जर्व हो गए। तो इस प्रोसेस को थ्रेड रोलिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब हॉट रोलिंग प्रोसेस क्या चीज़ है, ये प्रोसेस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट हॉट रोलिंग प्रोसेस और द ऑपरेशन फॉर द मोस्ट स्टील प्रोडक्ट इज डन ऑन द प्राइमरी रफनिंग मिल। जो सारे भी प्रोसेस हॉट रोलिंग प्रोसेस किए जाते हैं वो प्राइमरी एक रफनिंग मिल के ऊपर किए जाता है। दिस मिल आर नॉर्मली ए टू हाई रिवर्सिंग मिल, यानी इसमें जो है वो अरेंजमेंट इस तरीके का रहता है कि आप एक तरीके से इस एक साइड से प्लेट एंटर करोगे, वो दो रोलर के बीच पूरा पास हो जाएगा, फिर उसको आपको उसी कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपको उसी रिवर्सिंग कंडीशन पे वहाँ से ही आपको उसको रिटर्न करना है, तो जो ओरिजिनल डायरेक्शंस में वो वहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ब्लूम्स है, स्लैब्स है, उसका जो है वो थिकनेस जो है वो रोलर का डिस्टेंस एडजस्टमेंट करके उसको कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके उसका थिकनेस जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है। और इस रोलिंग मिल के अंदर जो है वो इसका डायमीटर ऑफ द रोलर्स होता है वो 0.6 to 1.4 मीटर तक यहाँ पे हो सकता है। देन द कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। अब कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या चीज़ हो सकते हैं? द कोल्ड रोलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इतना रहता है कि आपका सपोज मेटल है उसको हीट किया जा सकता है, पर उसको इतना ही हीट किया जा सकता है जितना उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो। उसके ऊपर जो प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को जो है वो हॉट रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर पे जो प्रोसेस की जाती है, रोलिंग प्रोसेस की जाती है, उसको कोल्ड रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और एक तरीके से जो है वो वर्क हार्डनिंग प्रोसेस है। सो द स्टार्टिंग ऑफ द मटेरियल फॉर द कोल्ड रोलिंग स्टील शीट इज pickles the hot rolling breakdowns coil from the continuous hot strip mill. The total reduction is achieved by the cold rolling is generally will vary from about 50% to the 90%। यहाँ पे इतना जो है वो कोल्ड रोलिंग से इसका रिडक्शंस थिकनेस रिडक्शंस किया जा सकता है। द रिडक्शंस इन ईच स्टैंड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली without failing
द मच बिलो द मैक्सिमम रिडक्शंस ऑफ द ईच पास, यानी एक पास, एक तरीके, एक डायरेक्शंस में अगर आप पूरा पास करोगे उस बिलेट को, तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म जो है उसका थिकनेस रिडक्शंस जो है ऑब्जर्व होता है. जनरली the lowest percentage reductions is taken place in the last pass to permit a better control in the flatness, gauge, surface finish, etc. So next, which is the rolling pass sequencing. अब rolling pass sequences यानी पास जो है वो किसको बोलते हैं, यानी आप उसके थिकनेस के अंदर किसी भी शेप के अंदर रिडक्शन करते जा रहे हो उसको जो है वो पास बोलते हैं. द डेफिनेशन ऑफ द पास इज दैट दोज विच इज हैविंग the two equal axes in an xy plane which is the square and round, यानी उसकी दो axes हैं, x axis और y axis, यानी स्क्वायर और राउंड के अंदर उसको जो है वो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, उसको जो पासेस बोलते हैं. द इंटरमीडिएट पासेस दोज हैव वन एक्सिस. इंटरमीडिएट पासेस के अंदर जो है वो एक ही एक्सिस होती है which is larger than the other one, which is the rectangular, box, diamonds, ovals, etc. So the deformations and the sequence, a definition bar into one intermediate passes or an intermediate bar into one definite pass which is configured as deformations. For example, a square into an oval, एक जो स्क्वायर था वो ओवल में कन्वर्ट हो गया. A deformations can produce any type of the bar. Deformation से किसी भी तरीके से एक बार बना सकते हैं. A definition, a definite bar into two passes. A intermediate pass followed by a definite passes or configurations in the sequence. A sequence only produce a definite bar, which is also called as a roll pass sequences. राइट. एक सीक्वेंस के तहत जो है उसका जैसे आपके पास जो है एक स्क्वायर है, उसमें हम लोग पहले ओवल में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ओवल में से धीरे धीरे जो है वो उस रोलर के बीच पास होके, उस सीक्वेंस से जो है वो पास होके एक राउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू आउट द मिल. ए कंटिन्यूस रोलिंग प्रोसेस, द लॉन्ग एक्सिस ब्रॉट बिटवीन द रोलर्स and is rolled into the shape which equal axes, then this shape is rolled into the different shapes with the different axes and so on. The reduction is must be applied after a 90-degree rotations of the bar at the each stand. यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक तरीके से एक पास, यानी एक डायरेक्शन से आपने ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपने बिलेट को या फिर ब्लूम को पास कर दिया, फिर उसका आपको वहाँ पे रिटर्न करने के टाइम पे आपको उसका 90 डिग्री के ऊपर रोटेशन कर देना है, यानी वो शेप में ज़्यादा डिफॉर्मेशंस आपको दिलेगा. उस चीज़ को जो है वो रोल पास डिज़ाइनिंग और डिफॉर्मेशंस बोलते हैं. नाउ द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द टूडेज लेक्चर विच इज़ द एक्सट्रूजन प्रोसेस. अब एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो किस चीज़ को जो है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं. तो यानी ये प्रोसेस एक्सट्रूजन और ड्राइंग प्रोसेस जो है वो एक तरीके से रोलिंग जैसे ही प्रोसेस है, और जिसमें सेम अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि एक डाई में से जो है वो मेटल को पास करके जो डाई का जो शेप है उस शेप में मेटल को आपको डिफॉर्म कर देना है. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सट्रूजन जो है वो एक तरीके से दिख रहा है. आप जैसे ही एक जो प्लंजर जैसा पीछे वाला जहाँ पे रैम लिखा है वो भाग है, वो आप उसको प्लंज करोगे तो जो बिलेट, जो हॉट मेटल जिसके अंदर जो है एक सिलेंडर के अंदर आपने रखा है, वो अब जैसे ही वो रैम जो है वो प्रेस करेगा, तो जैसे रैम प्रेस करता जाएगा तो फिर उस हिसाब से जो है वो जो डाई का शेप है, यानी डाई के अंदर जो शेप है वो एक्सट्रूड होके उस शेप में मेटल जो है वो बिलेट होके बाहर निकलेगा. सो इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which a block of metal enclosed in a container and forced to flow through the opening of the die.
यानी जो भी ओपनिंग है डाई का उस वहाँ से जो है वो बिलेट जो है वो पास हो गए, तो जैसा ओपनिंग का शेप होगा डाई का उस तरीके का शेप जो है वो यहाँ पे हमें मिल सकता है. द मेटल इज सजेस्टेड टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस एंड it undergoes the reductions and the elongations. Basically, it is an adaptations of the open die forging process. What is the use of the extrusion process? The manufacture of the solid and the hollow section. यानी यहाँ पे आपको एक सॉलिड अगर बार बनाना है, होलो बार बनाना है, तो फिर होलो जो है वो आपका डाई का शेप होगा. तो वो यहाँ पे आप मेटल में से होलो पाइप, रिंग, इस तरीके के बड़े जो सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉलिड एंड द होलो सेक्शंस फ्रॉम non-ferrous metals and the alloys. Then the sliding doors, tubes, which is having the various cross sections, doors and window frames, we can manufacture through the extrusion process. Here is the classifications of the extrusion process. The extrusion process is classified under the basic three conditions, which is the by the directions, then by the operating temperatures and by the equipments. So अगर यहाँ पे दो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, which is the by the directions and the operating temperature. By the directions, which is the direct and the forward extrusion, or second which is the indirect or the backward extrusions. और by the operating temperature के ऊपर अगर उसका classifications देखें तो hot extrusion process and the cold extrusion process is very much important for our syllabus point of view or applications point of view. So the classifications by the directions, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस जो है वो आपको फिगर के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है. तो एक मेरे पास एक सिलेंडर कंटेनर सिस्टम है जिसके अंदर जो है मैंने हॉट बिलेट जो है वो भर के रखा है, राइट. अब जो है वो जो पीछे वाला पोर्शन है वो एक रैम या फिर प्लंजर टाइप का एक सिस्टम है. और फॉरवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, आगे वाले पोर्शंस के अंदर मैंने एक डाई जो है वहाँ पे फिक्स करके रखी है. अब जैसे ही ये प्लंजर जो है या फिर रैम जो है वो एक कंप्रेसिव फोर्स जो है वो बिलेट के ऊपर अप्लाई करेगा जो कि हॉट बिलेट है, तो बिलेट जो है उस एक वैकेंसी डाई के अंदर एक वैकेंसी जैसा शेप हमें चाहिए, जैसे स्क्वायर है, राउंड है, तो उस शेप में से जो हॉट बिलेट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा. जैसे वो प्लंजर जो है वो वहाँ से एक कंप्रेसिव फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो एक वहाँ से डाई में से जैसा शेप है उस शेप में से मेटल जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा. तो इस प्रोसेस को जो है वो डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस या फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है बोलते हैं, राइट. पर यहाँ पे एक कंडीशंस ये होनी चाहिए कि मेटल जो आपका बिलेट जो होगा वो एक हॉट कंडीशन है, यानी वो जो है वो एक शेप को अचीव कर सके उस कंडीशंस में, सॉफ्ट कंडीशंस में होना चाहिए. नेक्स्ट विच इज़ दी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस. इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जो है वो यहाँ पे जो डाई है वो पीछे वाले पोर्शन के ऊपर, यानी यहाँ पे जो सिलेंडर का जो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अरेंजमेंट इस तरीके का होगा कि बैक साइड से जो है वो पूरा कंटेनर जो है वो क्लोज होगा, सी टाइप का एक कंटेनर होगा, तो पीछे से वो पूरा कंप्लीट पैक हो जाएगा. उसके बीच में जो है वो बिलेट है और आगे वाले पोर्शन के ऊपर एक डाई लगा हुआ है. अब यहाँ पे जो है जो रैम है या फिर प्लंजर है वो एकदम लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर, लेफ्ट हैंड पोर्शंस के ऊपर है. अब जैसे ही वो प्लंजर आपको बाहर की तरफ खींचेगा तो अंदर जो बिलेट जो है हॉट बिलेट वो जो है वो एक तरीके से हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शंस के ऊपर खींच के डाई का जैसा शेप होगा उस शेप के अंदर जो है वो आपका मेटल जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा. सो विच इज़ कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस या फिर बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस इस चीज़ को बोलते हैं. नेक्स्ट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशंस, विच इज़ द हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड द कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस. हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जो है इट इज़ डन at a fairly high temperature, which is approximately 50 to 75% of the melting temperature of the metal. जो मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसका 50-70% के ऊपर ये हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो
किया जाता है. The dye life and the components are affected due to the high temperatures and the pressures which make the lubricant which is necessary. इससे जो एक ड्रॉबैक यहाँ पे बाहर निकल के आता है वो वही चीज़ होता है कि एक तरीके से यहाँ पे जो डाई की लाइफ होती है और कंपोनेंट्स की लाइफ होती है वो एकदम हाई टेम्परेचर से वो पूरा अफेक्टिंग हो जाती है. और यहाँ पे जो प्रेशर रेंज रहती है वो 35 से लेके 700 मेगा पास्कल तक का उसका इसका प्रेशर जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर. द नेक्स्ट विच इज़ द टाइप्स ऑफ द हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस, विच इज़ द हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस विच इज़ basically classified into the three category, which is the lubricated hot extrusion process, non-lubricated extrusion process and the hydrostatic extrusion process. यहाँ पे अगर आपकी डाई की लाइफ और कंपोनेंट की लाइफ जो है उसको थोड़ा उसकी टेम्परेचर की इफ़ेक्ट कम करने के लिए हम लोग एक लुब्रिकेशंस जो है वो यूज़ करके एक्सट्रूजन प्रोसेस करते हैं, उसको लुब्रिकेटेड हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं. फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लुब्रिकेशन यूज़ नहीं होता है, उसका नॉन लुब्रिकेटेड कंडीशंस बोलते हैं. और एक हाइड्रोस्टेटिक यानी कि हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे और हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करेंगे शेप को कन्वर्ट करने के लिए, इसको हाइड्रोस्टेटिक हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस बोला जाता है. इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस हैं. सो यहाँ पे जो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो एलिमिनेशंस ऑफ द लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन लुब्रिकेशन यूज़ करके यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बिलेट का कम हो सकता है, वॉल के जो लॉसेस है वो कम हो सकते हैं. पॉसिबल टू यूज़ द डाई विथ ए वेरी लो सेमी कॉन एंगल्स. This process can be done in the hot, warm and cold operating conditions. However, the temperature is limited by the stability of the fluid which is used. So, the limitation which is, it is not suitable for the hot working which is due to the pressurized limit. So, the liquid should not solidify at the high temperature. This limit is obtainable. So, this is the application which is the cladding of the metals. अगर किसी का metal के ऊपर cladding करना है, then the making of the hot wires which is the less from the less conducted materials and the nuclear reactor fuel rods बनाने के लिए ये process use हो सकती है. So the another classifications which is the cold extrusion process. Cold extrusion process के अंदर is the process which is done at the room temperature. यहाँ पे जो है वो process पूरा room temperature के ऊपर किया जा सकता है और the elevated temperature के ऊपर किया जा सकता है. This process can be used for the materials that can withstand the higher stresses and created by the extrusions. So what is the advantages of the cold extrusion, which is improve the mechanical property. यहाँ पे higher temperature नहीं use हो रहा है, इसलिए जो mechanical properties है वो जो है वो ज़्यादा आपको better मिलेगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर के ऊपर मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है उसका थोड़े डिग्रेडेशंस आपको देखने को मिल सकता है. देयर इज़ अ गुड कंट्रोल्स ओवर द डायमेंशनल एक्यूरेसी, ज़्यादा आपको डायमेंशनल टॉलरेंसेस मिलेंगे. इंप्रूव द सरफेस फिनिश. देयर इज़ अ नो नीड ऑफ द हीटिंग ऑफ द बिलेट्स एंड देयर इज़ अ नो ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस. यहाँ पे क्योंकि आपका मेटल जो है वो हॉट हीट नहीं हो रहा है तो फिर वो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पे नहीं दिखेगा. So next, which is the disadvantage of the cold extrusion process. Now the tooling cost is very high. यहाँ पे जो है वो tool cost काफ़ी ज़्यादा लगता है. There is a large productions of the lot sizes which is required. यानी आपको बल्क में अगर आपको प्रोडक्ट बनाएं तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोडक्ट बनाने में ये प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा. द स्पेशल कोटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रिक्शंस एंड टू मेंटेन अ लुब्रिकेटेंट फिल्म थ्रू आउट द. यानी एक तरीके से आपको एक स्पेशल कोटिंग जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि जो है वो आपका इंटरनल कंपोनेंट्स का डैमेज कम हो सके. एंड द लिमिटेशन डिफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन. यानी कि कोल्ड कंडीशंस पे हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो लिमिटेशंस, एक तरीके से लिमिटेशंस इन द डिफॉर्मेशन, ज़्यादा मेटल जो है वो डिफॉर्म नहीं होगी. नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ द ड्राइंग प्रोसेस. इन टूडेज लेक्चर दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस वी हैव टू डिस्कस विच इज़ द ड्राइंग प्रोसेस. अब ड्राइंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है, तो ड्राइंग प्रोसेस बेसिकली जो है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस जैसे ही प्रोसेस है. इसमें भी जो है वो डाई का यूज़ करके आपको मेटल के अंदर शेप को फॉर्म करना रहता है.
तो इस प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली वायर ड्राइंग प्रोसेस और दी ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस। अगर आपको होलो ट्यूब्स बनानी है या फिर वायर्स बनाने हैं, जैसे कॉपर में से आपको वायर बनाना है, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे यूज़ होती है। आपको केबल बनाना है, कॉपर केबल बनाना है, तो फिर वो ड्राइंग प्रोसेस से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम लोग बना सकते हैं। द ड्राइंग इज एन ऑपरेशंस इन विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार और द ट्यूब इज रिड्यूस्ड और चेंज इन द शेप्स बाय पुलिंग इट। यहाँ पे खींच के बनाना है, जैसे वहाँ पे हम लोग पेस करके बनाते हैं, यहाँ पे टेंशन को, वहाँ पे कंप्रेशन का रोल था, यहाँ पे टेंशन का रोल हो जाएगा बाय द पुलिंग इट थ्रू ए कन्वर्जिंग डाइज। डाइज आर यूजुअली टैपर्ड्स, यानी एक डाई जो होगा वो टैपर्ड कंडीशंस में होगा, शेप जो है वो टैपर्ड कंडीशंस में होगा। तो इस तरीके के डाई को यूज़ करके पुल करके मेटल को खींच के जो है उसको डिफरेंट शेप में यहाँ पे कन्फिगर किया जा सकता है। द ड्राइंग प्रोसेस इज समवॉट सिमिलर टू द एक्सट्रूजन प्रोसेस। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई, एक्सेप्ट दैट इन द ड्राइंग प्रोसेस द बार इज अंडर द टेंशंस। यह चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि वहाँ पे जो रूल था वहाँ पे कंप्रेशन का रूल था, यहाँ पे जो रूल है वो टेंशन फोर्सेस का रूल हो जाता है। वेर इज द एक्सट्रूजन इज अंडर द कंप्रेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोनों तरफ जो है वो आपको एक तरीके से डाइज जो है वो दिख रही है, और डाइज में से जो है वो एक आपका रोड जैसा कुछ पास करके उस रोड को डाई का डिस्टेंस जो है, डाई का ओपनिंग जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम होगा। तो आप जैसे ही उसको फोर्सफुली बाहर से डाई की ओपनिंग पोजीशन पे आप उसको खींचोगे तो जो मटेरियल है वो मटेरियल जो है वो डाई का जो डिस्टेंस वाला जो शेप है, वो डिस्टेंस वाला जो शेप या फिर जो ओपनिंग डिस्टेंस है उस शेप के अंदर जो है वो मटेरियल आपको मिलने का स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो द ड्राइंग प्रोसेस अप्लाइज द टेंसाइल फोर्सेस, compression is also plays a significant role since the metal is squeezed as it passes through the die opening. The rod and the wire drawing are generally finished processing, and the product is either used as produced or is further processed into the other shapes, such as by the bending or the machining process. The rod are used for the various applications such as small pistons, then the structural members, shaft, spindles, and the raw materials for the making of the fasteners such as the bolts and the screws. The wire and the wire product have a wide range of applications in the drawing operations such as the electric wire, electric equipments, cables, springs, fencings, welding electrodes. Then the shopping carts are manufactured from the drawing process. The wire diameter is maybe which is smaller than the 0.025, या इतने डायमीटर, छोटे डायमीटर का भी जो है वो वायर जो है इस प्रोसेस से बनाया जा सकता है। यहाँ पे वायर प्रोडक्ट्स जो है आपको दिख रहा है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि फर्स्ट जो इमेज में जो है वो फेंसिंग वाला जो वायर है वो बना सकते हैं, फिर कॉपर वायर जो है वो बना सकते हैं, फिर अपने इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई के लिए जो वायर बना सकते हैं वो वायर बना सकते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड के जो वायर्स होते हैं वो बना सकते हैं, फिर शॉपिंग में जो हम लोग जो शॉपिंग कार्ट्स जो यूज़ कर सकते हैं वो कार्ट्स भी वायर से बना जा सकता है, और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सो the concept of the drawing process, which is involve the pulling of the wire, rod, bar through a die or converging the channel to decrease the cross-sectional area and decrease the length. In the majorities of the cases, the cross-section is circular, although the non-circular cross-section is maybe drawn and created by the drawing process. In the compressions to rolling or the drawing is offer a much dimensional accuracy control, lower capital equipment cost, and the extensions to the small cross sections. In comparisons to the extrusion process, the drawing is offers a continuous processing, lower equipment cost, and extensions to the small cross sections.
यहाँ पे जो है वो ड्राइंग प्रोसेस आपको ऑब्जर्व हो रही है। जो हमने पहले जो चीज़ आपको बताई थी, द ड्राइंग प्रोसेस इज़ यूजुअली प्रोसेस्ड एट द रूम टेम्परेचर। ये एक चीज़ जो है वो ख़ास जो है कि ड्राइंग प्रोसेस जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही परफॉर्म की जा सकती है। दस द क्लासिफाइड इनटू द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, बट इट में ऑल्सो परफॉर्म्स एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी थोड़े हल्के से टेम्परेचर के ऊपर जो है उसको परफॉर्म किया जा सकता है फॉर ए लार्ज वायर एंड प्रोड्यूस दी फोर्सेस। रिड्यूस जो है फोर्स को रिड्यूस करके लिए थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करके फिर यहाँ पे वो चीज़ जो है वो यूज़ हो सकता है। देन द कोल्ड ड्राइंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ जो है इस प्रोडक्ट के अंदर जो कोल्ड ड्राइंग प्रोसेस से जो बनाई जाती है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकती हैं। इससे जो है वो इम्प्रूव द साइज़ एंड द सेक्शन, यहाँ पे साइज़ और जो सेक्शंस है वो इम्प्रूव हो सकता है। दैट इज़ द टाइटर साइज़ एंड सेक्शन टॉलरेंसेस। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जो है वो बार के अंदर मिल सकती है। डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है वो मिल सकती है। सरफेस फिनिश ज़्यादा मिल सकती है। रिड्यूस द सरफेस मशीनिंग जो है उसको कम किया जा सकता है। देयर इज़ अ इम्प्रूव, देयर इज़ अ स्ट्रेटनेस, यहाँ पे स्ट्रेटनेस जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। कोस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पे मिल सकता है। देयर इज़ अ इंक्रीज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी आपका यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो है वो इस प्रोसेस से जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। हाउ डज अ ड्राइंग प्रोसेस इज़ वर्क। सो यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशंस मैंने दिया है। सो ए सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस। इन द ड्राइंग प्रोसेस अ पुलिंग फोर्स, यहाँ खींच के, एंड ए प्रेशर फोर्स फ्रॉम अ डाई which combine to cause the wire to extend and reduce in the cross sectional area while passing through the die is shown in the figure। यहाँ पे आप देख लीजिए कि डाई के बीच में से जो है वो पास होगा उस रोड और उसका डायमेंशंस जो है वो कम होता जाएगा। पर यहाँ पे जो बेसिक रोल प्ले करेगा दैट इज द टेंशन फोर्स और द प्रेशर फोर्स। How does the drawing process? Because of this combined efforts of the pulling force and the drawing force is less than the force that would be caused the wire is to be stretched or a neck or break downstream from the die. On the other hand, if a reduction is too large in the cross sectional area is attempted at the die, the drawing force is maybe break up the wire. In commercial practices, engineering, pulling loads are rarely above the 60% of the as proven strength, and the area reductions in the single drawing pass is rarely above the 35 to 30 to 35%, and often it is much lower. Now, what is the wire drawing process? In the wire drawing process, which is involve a stroke that can easily coiled and subjected to the sequential and the tandem drawing operations with as many as dozens of the more drawing occurring with a given drawing machines। यानी इसमें से आपको जो है वो वायर ड्राइंग प्रोसेस के अंदर जो है एक स्ट्रोक रहता है। वो स्ट्रोक जो है वो आपको नंबर ऑफ टाइम जो है वो डजन्स ऑफ टाइम आपको उसमें से ड्राइंग ऑपरेशंस के बीच में से आपको पास करना है। द इच ड्राइंग ऑपरेशंस और द पास, यानी जितनी बार आप पास करोगे उसको एक पास बोला जाएगा, विच इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द वायर टू द डाई from a coil or a capstans or the drum, passage through the die and take up on the capstans that pulls the wire throughout the die. A continuous drawing machine's consistency of the multiple dies separated by the accumulating drums. Each drum or capstans which is provide a proper force to draw the wire stroke through the upstream die. Each die is provide a small reductions, यानी एक पास जो है वो एक छोटा सा उसके अंदर रिडक्शंस करेगा। सो द डिज़ायर्ड टोटल रिडक्शन इज अचीव बाय द सीरीज ऑफ द डाइज, यानी काफ़ी सारी डाइज को यूज़ करके जो है वो आप रिक्वायर्ड डायमेंशंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। यानी आपको डाई ओपनिंग डाई के जो है वो डिस्टेंस आपको चेंज करते रहने पड़ेंगे। अब काफ़ी सारे ऐसे डिस्टेंसेस को यूज़ करके आप रिक्वायर्ड शेप में आपके प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं।
जो वायर ड्राइंग प्रोसेस है, there is a fine wire drawing process or ultra fine wire process, typically which is referred to the round wire with a diameter is less than 0.1 mm, which is the fine wire drawing. And ultra fine के अंदर क्या रहेगा, typically which is referred to the round wire as fine as the 0.0025 mm in the diameter, which is the ultra fine wire drawing process. Now what is the tube drawing process? A tube which is produced by, यहाँ पे ट्यूब के अंदर डाई का अरेंजमेंट इस तरीके के होगा कि एक होलो वायर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम लोग ट्यूब भी बोल सकते हैं. द ट्यूब इज प्रोड्यूस बाय द एक्सट्रूजन और द अदर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए शेप रोलिंग प्रोसेस. ट्यूब ड्राइंग जो है वो ट्यूब जो है वो ड्राइंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस और शेप रोलिंग प्रोसेस से भी प्रोड्यूस्ड हो सकती है. ऑल्सो द ट्यूब कैन बी रिड्यूस्ड in thickness or the diameter by the tube drawing process. The shape of tubes can be changed by using the dies and the mandrel. एक जो है वो हार्ड पोर्शंस ट्यूब के बीच में खड़ा रहेगा, उसको जो है वो बोल सकते हैं मैंड्रिल विद द वेरियस प्रोफाइल. मैंड्रिल जो है वो वेरियस प्रोफाइल्स के हो सकते हैं, जैसे आपका इंटरनल डायमीटर जितना है ट्यूब का है उतने डायमीटर का एक हार्ड रिंग जो है वो उसके बीच में हम लोग फिक्स कर देंगे, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए मैंड्रिल. और एक इसके ऑप्शन में हम लोग कोई स्पाइडर भी लगा सकते हैं जो एक क्रॉस साइन वाला होगा, जो इंटरनल डायमेंशंस के अंदर प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा. अब वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो जो है उसको हम लोग जो है वो डाई के ओपनिंग में से खींचने की कोशिश करेंगे. तो जितना डाई का ओपनिंग होगा उस डाई के ओपनिंग के डायमीटर का जो है वो ट्यूब हमें मिल सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज ए ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस. अब ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती है. तो यहाँ पे आपको फिगर के अंदर जो है वो आपको दिख रहा है कि एक डाई है, डाई के अंदर मैंने छोटा सा एक मैंडल जो है वो फिक्स करके रखा है. अब जैसे ही मैं डाई में से जो है उस ट्यूब को खींचने की कोशिश करूँगा, तो जितना शेप जो है, जितना डायमीटर जो है वो मैंड्रिल का होगा, उतना डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर जो है वो आपका ट्यूब के ऊपर अचीव हो जाएगा. उस प्रोसेस को ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस जो है बोल सकते हैं. तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने बड़ी 3 प्रोसेस जो है वो आज डिस्कस करने की कोशिश की है. उसमें से सबसे बड़ी पहली प्रोसेस थी और रोलिंग प्रोसेस थी. डिफरेंट रोलिंग प्रोसेस को हमने स्टडी किया, राइट. फिर रोलिंग पास यानी सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोलिंग मिल्स को हमने डिस्कस किया. फिर उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस, उसके क्लासिफिकेशंस देखे. क्लासिफिकेशंस के ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर हॉट एक्सट्रूजन्स और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस देखी हमने. फिर उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस देखी. ड्राइंग प्रोसेस के अंदर जो है वो हमने ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली टेंशन, फोर्स और प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड्स करती है. उसके अंदर जो है वो हमने वायर ड्राइंग प्रोसेस और ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस को आज डिस्कस करने की कोशिश की है, राइट. आई थिंक आपको ये सारे भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट आप एक अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा. और आप जो है अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे आपके क्वेश्चंस जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे पूछ सकते हैं. मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा. और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम फोर्जिंग प्रोसेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो ये लेक्चर के लिए इतना ही. अगर आपको क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हैं. आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपके कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.